we are going to see two different semiconductor devices. So as shown in figure, this is a structure of a PNP transistor. So you can see here that the semiconductor wafers are arranged as shown in figure. So what has been done between two p-type semiconductor materials, what has been done is one n-type material has been sandwiched. So this is called as PNP transistor. So if I want to show the electrons and holes, so you can see that in case of n-type material, there will be electrons which will be majority charge carriers. So here there will be electrons, n-type material, majority charge carriers will be electrons. Then what will happen to p-type material? In case of p-type material, majority charge carriers will be holes. So in PNP transistor, this will be the condition. What are the things that you need to remember about this particular PNP transistor is that there is something which is called as doping concentration. So if you see the doping concentration, then the doping concentration, the base region will be lightly doped, the emitter region will be highly doped, and the collector region will be moderately doped. So talking about doping concentration, once again I will make the comment. This base region, from here to here, this base region will be lightly doped. डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है, हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था. लाइटली डोप का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ impurities added, number of additional impurities added in the pure semiconductor, those will be less. तो यहाँ पर क्या होगा, number of free charge carriers will be lesser as compared to the remaining segments. तो base region will be lightly doped, so less free charge carriers. Emitter region will be highly doped. अभी emitter को highly dope करने की वजह से क्या होगा, there will be many charge के free charge carriers, that is holes over here. And the same with the collector, collector is moderately doped. तो ये हो गया एक स्ट्रक्चर जिसको बोला जाता है PNP. So what is the another structure, or what is the next type of structure, that is called as NPN transistor. So what is done in case of NPN transistor? Let us quickly see. As you can see here, in case of NPN transistor, you have two N wafers and one P wafer. So in case of N type of collector, you can see here, there will be electrons which will be majority charge carriers. Similarly, electrons will be there into the emitter region, which will be majority charge carriers. And in case of p-type base, there will be holes, but since the doping is light in a base region, so number of electrons will be less. So these are two type of transistors which we are going to see. One is known as PNP transistor and another is known as NPN transistors. So how to draw the symbol for this PNP and NPN transistor? So this collector, base and emitter. Remember at the emitter, there is one arrow which is drawn like in this diagram. So this arrow differentiates between NPN and PNP transistor. Let us draw the uh, symbol for NPN transistor. Collector, base
and emitter. So these are two different type of transistors we are going to learn. Maximum time we will be talking about the NPN transistor. The all equations and derivations I will explain, they will be with reference to the NPN transistor. So students, दो टाइप का ट्रांजिस्टर आपको समझ में आ गया. ये ट्रांजिस्टर का जो सिंबल है, ये इसका नाम है पी एन पी, और ये जो ट्रांजिस्टर का सिंबल है इसका नाम है एन पी एन. ये ट्रांजिस्टर क्या करता है और इसका क्या काम है, ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ. ठीक है. सो लेट अस क्विकली गो थ्रू द ऑपरेशन ऑफ हाउ द ट्रांजिस्टर functions. So I will define the regions. This is collector, this is base, and this is emitter. We also need to define which type of transistor is this. So either you need to take NPN transistor or you need to take PNP transistor. So what I will do, I will take NPN transistor so that I can explain operation of this particular circuit by means of using the flow of electrons. So let us use NPN transistor. So I will say that this type of material used over here is N, this type of material used over here is P, and this type of material used over here is A. So if you see at this particular location, this junction is known as collector to base junction. क्या बोलते हैं इसको? Collector to base junction. So the next junction is known as base to emitter junction. क्या बोलते हैं इसको? Base to emitter junction. I am talking about the junction which is between collector and base. So I can explain it in better manner by using this technique. So this junction between collector and base, this is called as collector to base junction. If you see carefully, you will be able to see that. And the another junction that is there is between base and emitter. So the red line what you can see here is nothing but base to emitter junction. So you need to remember something. In order to operate this transistor into active region, there are 4 different regions in which the transistor will be operated, but let me discuss only active region now. In order to operate this transistor into active region, the collector to base junction has to be reverse bias and the base to emitter junction has to be forward bias. So let us see how the charge carriers will be present there and how the flow of electrons and holes will take place. So being NPN transistor, you can see the electrons will be majority charge carriers in this case. So I can show number of electrons, and I will also take care that I show the proper doping concentration. So these are the number of electrons which are available into the collector region. Similarly, there will be electrons which will be available into the emitter region, and there will be holes which will be available into base region. So it is lightly doped, so number of holes available over here will be less. Now, sir, will it be exactly like that as you have shown? No. So you know that this collector to base junction, this has to be reverse bias. So I will remove certain electrons and holes from this place and I will make that junction reverse bias. Students, due to doping concentration, what will happen? The reverse bias will be lesser into the collector region and it will penetrate more into the base region. So this has to be reverse bias. Before that, I need to connect a battery, but let me draw the diagram first. After that, I will show you. Let me show this forward bias and reverse bias junctions here, and then I will show you how the batteries are connected. And over here, this particular
junction, that is base to emitter junction, this has to be configured into the forward bias. We will configure them into forward bias. We will see how to connect the batteries. But first, let me show how we have to do that. So this base to emitter junction, this has to be a forward bias junction. To do this reverse bias and forward bias, how to make this reverse bias and forward bias? To do so, you have to connect a batteries. The collector to base junction, collector is made up of N type of material and base is made up of P type of material. So to make this particular junction forward bias, what you need is, you need to connect a battery just like this, collector towards positive towards the collector, and this battery can be termed as VCB, voltage between collector to base. The battery will be variable battery so that I can make certain adjustment according to me. And in order to make this PN junction forward bias, I need to connect a battery which is known as VBE like this, so that I will be able to change the potential. I hope you have understood. Students, I will take a 2-minute question answer break over here. First question. Are you understanding what is going on? We are going to study a topic which is known as transistor. बोलो कौन सा टाइप का ट्रांजिस्टर मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है? एनपीएन ड्रॉ किया है कि पीएनपी ड्रॉ किया है? आपके सामने जो किया है वो आपको मैसेज बॉक्स में लिखना है स्टूडेंट्स। एयर पेयर एनपीएन ट्रांजिस्टर ड्रॉ किया। एनपीएन ट्रांजिस्टर ड्रॉ किया है, 3 रीजन आपको यहाँ पर दिखता है, कलेक्टर, बेस और एमिटर। तीनों रीजन आपके सामने हैं। कलेक्टर का डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन, पहले मैं बेस से चालू करता हूँ। बेस का डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन कैसा होता है? लोएस्ट होता है कि हाईएस्ट होता है? लोएस्ट, यस। एमिटर का कैसा होता है? लोएस्ट होता है कि हाईएस्ट होता है? एमिटर, एमिटर का कैसा होता है? लोएस्ट होता है कि हाईएस्ट होता है? यस, एमिटर इज हाईएस्ट। और कलेक्टर का डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन कैसा होता है? कलेक्टर नाइदर लो नॉर हाई, कलेक्टर इज डोप्ड मॉडरेटली। कलेक्टर का डोपिंग कैसा होता है? मॉडरेटली, बराबर है। अभी यहाँ पर मैंने एनपीएन ट्रांजिस्टर ड्रॉ किया है, तो कलेक्टर और एमिटर में इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, बेस में होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, बराबर है। अभी पहला क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू ऑपरेट द ट्रांजिस्टर इनटू एक्टिव रीजन, कलेक्टर टू बेस जंक्शन कैसा होना चाहिए? फॉरवर्ड बायस की रिवर्स बायस? कलेक्टर टू बेस जंक्शन, कलेक्टर टू बेस जंक्शन रिवर्स बायस, बराबर। बेस टू एमिटर जंक्शन कैसा होना चाहिए? फॉरवर्ड की रिवर्स। बेस टू एमिटर जंक्शन, बेस टू एमिटर जंक्शन शुड बी फॉरवर्ड बायस, बराबर है। तो अभी इसके लिए हमने यहाँ पर ये 2 बैटरीज लगाए हैं बच्चों। अभी हम देखेंगे कि जब मैं इसको फॉरवर्ड बायस और ये करता हूँ तो चीज़ें कैसी होती है। तो वन थिंग इज क्लियर दैट दिस पर्टिकुलर जंक्शन is reverse bias. I assume that this particular junction is reverse bias, and this base to emitter junction, this is forward bias. So to do so, I have to do something regarding to this particular batteries. अभी देखो, पहले इनिशियल स्टेट में आप ऐसे समझो कि वो कलेक्टर टू बेस जंक्शन रिवर्स बायस है और बेस टू एमिटर जंक्शन अभी तक फॉरवर्ड बायस हुआ नहीं है। ये जो वीबी नाम का बैटरी है, ये वीबी नाम के बैटरी को थोड़ा बड़ा के मैं उसको फॉरवर्ड बायस करने वाला हूँ। सी नाउ व्हाट विल हैपन, द कलेक्टर टू बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस, सो देयर विल नॉट बी, मैं आइडियल सिचुएशन बता रहा हूँ, देयर विल नॉट बी एनी करंट दैट विल फ्लो थ्रू दिस पर्टिकुलर रिवर्स बायस जंक्शन। अभी ये जो बेस टू एमिटर जंक्शन है, इसको आप फॉरवर्ड बायस करने वाले हो। मैं थोड़ा जूम करके एक्सप्लेन करता हूँ बच्चों। अभी तक आपने इसको फॉरवर्ड बायस किया नहीं है, लेकिन अभी आप इसको फॉरवर्ड बायस करने वाले हो। सो द मोमेंट द जंक्शन विल बिकम फॉरवर्ड बायस, होगा क्या मालूम है क्या बच्चों? ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से यहाँ आएगा। मेरा एरो दिख रहा है क्या आपको? इलेक्ट्रॉन एमीटर में से बेस में आने वाला है, देखो जरा ध्यान से। और ये एक कार्यक्रम होगा, और दूसरा ये होल यहाँ से यहाँ जाएगा। द होल विल मूव फ्रॉम बेस टू एमिटर,
and the electron will come from emitter to base. तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएगा बेस में और होल जाएगा एमीटर में। अब देखना, ये जो इलेक्ट्रॉन भाई साहब यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, ये यहाँ पर आने के बाद क्या होगा ये मैं आपको बोलता हूँ। ये जो इलेक्ट्रॉन भाई साहब आ रहे हैं यहाँ से यहाँ, वो वहाँ पर आने के बाद क्या होगा, तो उस इलेक्ट्रॉन के पास दो ऑप्शन रहेंगे। पहला ऑप्शन कौन सा है, मैंने उसको लेके आता हूँ एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर, तो मुझे आपको समझाने में आसानी होगी। अभी ये इलेक्ट्रॉन ये अकेला नहीं आएगा, ऐसे बहुत सारे आएंगे, लेकिन फिलहाल एक्सप्लेनेशन के लिए मैं एक लगा रहा हूँ। अभी ये इलेक्ट्रॉन भाई साहब यहाँ आ गए, यहाँ आने के बाद इनके पास क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकता है, और दूसरा ऑप्शन है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकता है। मतलब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहला ऑप्शन है कि वो इलेक्ट्रॉन बेस में जा सकता है, और दूसरा ऑप्शन है कि वो इलेक्ट्रॉन कलेक्टर में जा सकता है। अभी वो इलेक्ट्रॉन के पास दो रास्ते हैं, दैट इलेक्ट्रॉन गो टू कलेक्टर और दैट इलेक्ट्रॉन कैन कम टू बेस टर्मिनल। टर्मिनल बोल रहा हूँ मैं, दैट इलेक्ट्रॉन कैन गो टू कलेक्टर और दैट इलेक्ट्रॉन कैन कम टू बेस टर्मिनल। अभी क्या होगा वो देखो, वो इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या होगा वो देखो। मैं एक इलेक्ट्रॉन देके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन देके। ये रिवर्स बायस के लिए वोल्टेज कितना है बच्चों, ये रिवर्स बायस के लिए वोल्टेज है अप्रोक्सीमेटली, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अप्रोक्सीमेटली द वोल्टेज अप्लाइड ओवर हियर इज 10 वोल्ट, और ये फॉरवर्ड बायस का वोल्टेज कितना है, अप्रोक्सीमेटली इट इज अप टू 0.7 वोल्ट। मैं इसको जस्ट फॉर एन एग्जांपल कोट कर रहा हूँ। सो कैन यू सी व्हाट आर द वोल्टेज लेवल्स, 10 वोल्ट एंड 0.7 वोल्ट। अभी मुझे एक बात बताइए, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है बेस टर्मिनल, अगर मैं इसका वोल्टेज लेता हूँ, मैं कुछ ज़्यादा टेक्निकली साउंड बोलने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझाना है। ये जो मेरा बेस रीजन है, ये बेस रीजन का वोल्टेज कितना दिख रहा है आपको, पॉजिटिव 0.7, पॉजिटिव 0.7। और यहाँ पर ये जो कलेक्टर रीजन है, ये कलेक्टर रीजन का वोल्टेज आपको कितना दिख रहा है, अगर आपने ग्राउंडिंग को कॉमन माना, अगर आपने ग्राउंड को कॉमन माना तो ये हो जाएगा 10 प्लस 0.7, दैट इज 10.7। तो उसको 10 वोल्ट पकड़ लो आप अभी फिलहाल। तो आप मुझे एक बात बोलिए, अगर मैं वॉल्स ड्रॉ करूँ, वॉल्स, तो ये जो मेरा बेस का वॉल है ना, बेस का वॉल, ये बेस का वॉल मैं यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करते हैं, जो मैं अभी रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक बेस का वॉल रेड कलर से ड्रॉ किया है। ये बेस के वॉल का पोटेंशियल कितना आएगा, 0.7। और मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ कलेक्टर का वॉल। कलेक्टर का वॉल देखना, कलेक्टर का वॉल यहाँ से यहाँ तक जाएगा, इसका वोल्टेज कितना आएगा, 10.7, अज्यूमिंग दैट एमिटर इज ग्राउंडेड। अगर वो सब छोड़ो, लेकिन 10 तो आएगा ही आएगा, इतना आप लोगों को समझ में आता है। अभी मुझे एक बात बताओ, अगर वो रेड कलर का वॉल है 0.7 और वो ब्लू कलर का वॉल है 10.7 या 10 वोल्ट पकड़ो तो भी चलेगा, तो मेरा सवाल ये है कि जो इलेक्ट्रॉन बेस रीजन में आया था उसको मैं वापस लेके आता हूँ। मेरा सवाल ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो बेस रीजन में आया था, जो मैंने अभी वापस वहां पर लाया है, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन कलेक्टर के पास जाएगा या बेस के पास जाएगा, ये मेरा सवाल है। और मेरा सवाल आप समझ गए ऐसे मैं आशा करता हूँ, तो आप मुझे बताओ कि वो जो इलेक्ट्रॉन अभी आपको दिख रहा है वो कहाँ जाएगा, बेस के पास रेड कलर के वॉल के पास जाएगा कि ब्लू कलर के वॉल के पास जाएगा, बराबर वो कहाँ जाएगा, कलेक्टर के पास, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज निगेटिवली चार्ज। तो वो कहाँ पर जाने वाला है बच्चों, कलेक्टर के पास। तो अभी होता क्या है ये मैं आपको एक सीन से समझाता हूँ। अभी क्या होता है वो समझो, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये फॉरवर्ड बायस होने की वजह से, ये बेस टू एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस होने की वजह से आते हैं बेस में, लेकिन ये बेस में आने के बाद है ना, ये बेस से सीधा चले जाते हैं ये कलेक्टर में। ये यहाँ पर इस तरीके का कुछ सीन होता है। तो द इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग टू बेस रीजन ड्यू टू VBE, but the electrons are not waiting there into the base region and they are going to the collector region. So अभी मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि एग्जैक्टली होता क्या है। इलेक्ट्रॉन को बेस में लेके आने वाला कौन है, VBE,
लेकिन कलेक्टर में लेके जाने वाला कौन है? VCE। तो होता क्या है, मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ स्टूडेंट्स। अगर आप समझो कि आपके इलेक्ट्रॉन्स 1000 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बेस में आए, तो वो 1000 इलेक्ट्रॉन्स में से ऑलमोस्ट 990 इलेक्ट्रॉन्स ये कलेक्टर में चले जाते हैं, और बचे हुए 10 इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो आपके बेस की तरफ आते हैं। इलेक्ट्रॉन 1000 इलेक्ट्रॉन अगर बेस में आए, वो किसकी वजह से आते हैं? ये VBE के वजह से। VBE जो फॉरवर्ड बायस करता है बेस टू एमिटर जंक्शन को, इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। लेकिन वो जैसे ही बेस में आते हैं, दोज इलेक्ट्रॉन्स हैव टू ऑप्शंस। They can travel to base terminal or they can travel to collector terminal, but since collector is more positive, they will choose to travel to collector terminal. तो 1000 इलेक्ट्रॉन अगर आएंगे, तो 990 इलेक्ट्रॉन कलेक्टर के पास चले जाएंगे और 10 इलेक्ट्रॉन बेस के पास आएंगे। आप समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? सो नाउ अभी मैं आपको हर चीज का मतलब समझाता हूँ स्टूडेंट्स। ये देखना, ये जो आपका सेगमेंट है जिसको आप एमीटर बोल रहे हो, ये एमिटर भाई साहब में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और ये जाते हैं कहाँ पर? कलेक्टर में। और कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे ये कौन डिसाइड करता है मालूम है? ये वीबी इलेक्ट्रॉन, मतलब VBE का वोल्टेज डिसाइड करता है। मतलब एमिटर से कितने इलेक्ट्रॉन को बेस में लाना है, दैट विल बी डिसाइडेड बाय वैल्यू ऑफ VBE। तो अगर 1000 लाए तो 990 कलेक्टर के, 10 बेस के। 2000 लाए तो 1980 कलेक्टर के एंड 20 किसके रहे बचेंगे? बेस के। So you can see the electrons are moving from emitter to collector. That is the reason this region is known as emitter. Emitter is the region which emits the electron. तो उसको क्या बोला जाता है? emitter बोला जाता है। अभी अगर आप इसके बाद में देखेंगे, once the electrons are emitted, then they are coming to the collector region। तो देखो एमिटर से गए कहाँ आ गए? कलेक्टर में। तो जो इलेक्ट्रॉन एमिट करता है उसको एमिटर बोला जाता है, जो इलेक्ट्रॉन कलेक्ट करता है उसको कलेक्टर बोला जाता है। अभी मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन क्यों बोल रहा हूँ बच्चों मालूम है क्या? क्योंकि आपका जो चार्ज कैरियर है वो इलेक्ट्रॉन है। अगर आप इसके जगह पर पीएनपी ट्रांजिस्टर लोगे, तो इलेक्ट्रॉन के जगह पर मुझे इसको होल्स लेके समझाना पड़ेगा। तो अभी इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज कैरियर्स, इतना समझ लो। सो नाउ जो इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है इट इज कॉल्ड एज एमिटर, जो कलेक्ट करता है इट इज कॉल्ड एज कलेक्टर। तो सवाल है फिर ये क्या है बाबा? ये जो इधर बीच में जो बैठा है बेस रीजन पिंक में होके, वो क्या है? तो बेस इज द रीजन which will control how many electrons to be brought from emitter. So in this manner, you will be able to control the value of current that flows between this collector, base and emitter. अभी देखो मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ। ये जो भाई साहब है, ये एमिटर भाई साहब ने इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ भेजे, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रैवल हो रहे हैं। अगर आपके इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रैवल हो रहे हैं, तो आपका करंट एग्जैक्टली उल्टा जाएगा। तो अगर मुझे यहाँ पर अभी करंट दिखाना है, तो मेरा करंट कैसा जाएगा? देखो, करंट मेरा ऐसा जाएगा। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में करंट जाता है, करंट फ्लोज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब मैं कुछ नोटेशंस लिख रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सो दिस इज द करंट which is the current flowing through the collector terminal. So this current is given by collector current IC. This is the current which flows to the base given by IB. Students देखना, इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है मतलब करंट अंदर जाएगा। आपने देखा था, मैंने आपको दिखाया था, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, ये भाई साहब आने के बाद सीधा ये बेस में इस तरीके से आएंगे। अगर आपको याद है तो मैंने दिखाया था। मतलब 1000 में से 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ आने वाले हैं, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं मतलब करंट अंदर जा रहा है। सो दैट इज कॉल्ड एज बेस करंट। IB डायरेक्शन कैसे डिसाइड हुआ? डायरेक्शन फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आप देखो ये बेस करंट IB, एंड देन if you want to show emitter current IE, this will be the emitter current IE. So I can see over here the value of IE is decided by value of IC and value of IB. This equation will always come in your life. The value of emitter current IE
is equals to addition of collector current IC plus base current IB, and the value of IC is dependent on IB, which is equals to IC is equal to बीटा इंटू IB. इन चीज़ों को बच्चों ज़िंदगी भर याद रखना. So this is how your transistor operates. I hope you have understood the concept.